So yesterday we saw constraints. So can someone tell how many constraints are there in SQL? Which are those? Yes, no, don't know. Sir, there are 6 constants in SQL. First is not null, second is default, third is unique, fourth is primary key, and foreign key and check. Right. So what is the difference between primary key and unique key constraint? Primary key is unique identifier row of the table, and unique key unique identifier for row or table when primary key is not present. And primary key not be null, and unique key should be null, sir. Not should be null. Not should. शुड बी नल का मीनिंग क्या होता है कि मतलब वो नल होना ही चाहिए, अच्छा, ऐसा नहीं. सो प्राइमरी की में नल वैल्यूज अलाउड है. प्राइमरी की कैन हैव नल वैल्यूज, ऐसा बोलने का. और सॉरी, प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज, whereas unique key can have null values. okay. और next difference, only one primary key present in table, but multiple unique key can be present in single table. yes. So in a table we can only have one primary key, whereas there could be multiple unique keys in a table. So ये differences है प्राइमरी की यूनिक की के बीच में. Then what is foreign key? Foreign keys uniquely identify the row and records in any other table, sir. Also known as the referral key. And foreign key accept null value. Yes, foreign key allows null values. Foreign key is a column or combination of column whose value match with the primary key or unique key. Column in different table. Right. Okay. All right. So आज देखने वाले हैं index. So we have something called as index in SQL. So we'll see what is index. So index मतलब क्या है? So indexes are special lookup tables
that the database search engine can use to speed up the data retrieval. So indexes are kind of special lookup tables which are used by the database search engine to speed up the data retrieval. Simply put, an index is a pointer to data in a table. तो इंडेक्स एक पॉइंटर की तरह काम करता है. तो जब भी कुछ डेटा तुमको डेटाबेस में से फेच करना है तो डेटाबेस इंजन इंडेक्स का यूज करके उस डेटा को जल्दी फेच करके देता है अपने को. An index in a database is very similar to an index in the back of a book. तो बुक में भी इंडेक्स पेज होता है. तो बुक के इंडेक्स पेज में क्या इंफॉर्मेशन होती है? तो हर एक चैप्टर और वो चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है वो पेज नंबर. चैप्टर के अंदर भी फिर अलग अलग टॉपिक्स जो होते हैं, हर एक टॉपिक कौन से पेज नंबर पे आने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन होती है. तो सीधा अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक को ही रेफर करना है तो आप सीधा इंडेक्स पेज देख के उसी पेज पे आप जाते हो. तो इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द एंटायर बुक you directly jump onto the particular topic whichever you want. तो similarly यहाँ पे भी इंडेक्स उसी तरह काम करता है. अगर आपको डेटाबेस के टेबल में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही देखने हैं, 100 रिकॉर्ड में से सिर्फ 10 रिकॉर्ड देखने हैं स्पेसिफिक, और अगर आपने इंडेक्स लगाया है उस टेबल पे और जिस कॉलम के बेसिस पे आप डेटा फिल्टर कर रहे हो उसी कॉलम पे अगर आपने इंडेक्स लगाया है तो इंडेक्स आपको तुरंत उसी लोकेशन पे जाके डेटा फेच करके देता है. तो इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द एंटायर टेबल, database engine can directly jump onto the location where the exact data is there and it can directly fetch data from that location. SQL indexes are nothing but optional structure associated with the table which may or may not improve the performance of query. जरूरी नहीं है कि हर बार इंडेक्स लगाया और आपके क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ा. कई बार इंडेक्स लगाने के बाद परफॉर्मेंस डाउन भी हो सकता है. देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज वेयर इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड है और कुछ केस में इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड नहीं है. An index helps to speed up select queries and where clauses, but it slows down data input with the update and insert statements. तो इंडेक्स सिलेक्ट क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ाता है क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी हम डेटा फेच करने के लिए यूज करते हैं, बट कई बार इंडेक्स की वजह से इंसर्ट और अपडेट क्वेरी का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन भी हो सकता है. Indexes can be created or dropped with no effect on the data. तो आप कभी भी इंडेक्स लगा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो. ऐसा नहीं है कि डेटा टेबल क्रिएट करने के बाद डेटा इंसर्ट करने के पहले ही इंडेक्स पहले से बना के रखना है. सो जरूरी नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो. SQL indexes are nothing but way of reducing the cost of the query. तो इंडेक्स लगाने के बाद सिलेक्ट क्वेरी की कॉस्ट जो है कम हो जाती है. मोर द कॉस्ट ऑफ द क्वेरी लेस द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वेरी. तो जितना ज्यादा कॉस्ट होगा क्वेरी का उतना परफॉर्मेंस उसका लो माना जाता है. तो कॉस्ट कम यानी कि परफॉर्मेंस ज्यादा. तो इंडेक्स जो है कॉस्ट कम करने में मदद करता है. तो कॉस्ट कम हो गया तो परफॉर्मेंस बढ़ता है. The main task of query tuner is to reduce the cost of the query using indexing, reduce the full table scans, and reduce the time to fetch the records from the query.
तो मेनली परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में इंडेक्स का यूज किया जाता है। जब भी आपको किसी क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो उस टाइम पे आप इंडेक्स लगा के परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। Proper indexes are good for performance in large databases, but you need to be careful while creating an index. So as I said, जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे इंडेक्स लगाया तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा ही, कई बार परफॉर्मेंस डाउन भी हो सकता है। So you have to be careful while creating an index. A selection of fields depends on what you are using in your SQL queries. तो कौन से कॉलम पे इंडेक्स लगाना है वो डिपेंड करता है कि आप डेटा फेच करते टाइम कौन से कॉलम के बेसिस पे ज्यादातर डेटा फिल्टर करते हो, उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि कौन से कॉलम पे इंडेक्स लगाया जाए और कौन से नहीं। सो मेनली इंडेक्स का यूज क्या है, तो सिलेक्ट क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ाना। अगर कोई क्वेरी है और आपका टेबल साइज बहुत बड़ा है, उस टेबल में से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही फेच करके लाती है। थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है टेबल में, उसमें से कुछ हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपकी क्वेरी फेच करती है। तो ऑब्वियसली इतने बड़े टेबल में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड करने हैं फेच, यानी कि आप बहुत कुछ फिल्टर कर रहे हो। तो फिल्टर कर रहे हो यानी कि हर टाइम पे डेटाबेस को क्या करना पड़ता है कि उस टेबल में से हर एक रिकॉर्ड उठाओ और आपकी जो भी कंडीशन है उसके अगेंस्ट देखो, मैच करके देखो कि हाँ भाई ये रिकॉर्ड इस कंडीशन पे मैच करता है या नहीं। मैच करता है तो उसको रिजल्ट सेट में आपको लाना है, मैच नहीं करता है तो उसको स्किप करो, नेक्स्ट रिकॉर्ड देखो। तो हर एक रिकॉर्ड स्कैन करके आपको कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो मैच करते हैं कंडीशन पे वही फेच करने हैं। तो टेबल साइज बड़ा है तो हर एक रिकॉर्ड स्कैन करने में काफी टाइम जा सकता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस लो हो सकता है। तो इंडेक्स लगाया तो क्या होता है, तो इंडेक्स बैकएंड में क्या करता है कि खुद का एल्गोरिदम चलाता है कुछ ना कुछ, और एल्गोरिदम चला के उसका कुछ तो एक लो लॉजिक बना के स्टोर करके रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जब भी क्वेरी चलाओगे आप सिलेक्ट वाली, और ऐसा कॉलम यूज करोगे आप डेटा फिल्टर करने के लिए जो जिसके ऊपर आपने इंडेक्स लगाया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आप की क्वेरी चलेगी तो डेटाबेस इंजन को पता चलेगा कि हाँ भाई इस कॉलम के ऊपर ऑलरेडी इंडेक्स बना चुका है। तो वो इंडेक्स की हेल्प लेगा और इंडेक्स को पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे मैच होने वाला डेटा एग्जैक्टली हार्ड डिस्क के कौन से लोकेशन पे है, वो सीधा उसी लोकेशन पे जाएगा, वहां से डेटा आपको फेच करके देगा। तो इस केस में पूरा टेबल स्कैन करके नहीं बैठेगा वो, क्योंकि इंडेक्स को ऑलरेडी पता रहता है कि जो डेटा आपने मांगा है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो सीधा वहां पे जाके वो डेटा आपको लाके फेच करके देता है। बट ये सारी चीजें बैकएंड पे होती है, आपको कुछ दिखता नहीं है। आप जब क्वेरी चला तो सीधा क्वेरी चलती है और आपको रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखता है। सिर्फ इंडेक्स लगाने से क्वेरी, मान लो पहले क्वेरी कंप्लीट होने में 5 या 10 सेकंड लेती थी, 10 सेकंड लेती थी मान लो, अभी इंडेक्स लगाने के बाद वो मे बी 6 या 7 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। तो सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ गया ऐसा आपको दिखता है, बट बैकएंड में वो हो क्या रहा है, डेटा कैसे फेच हो रहा है, इंडेक्स कैसे काम कर रहा है, ये आपको कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि ये सारी चीजें बैकएंड पे होती है। अपना काम क्या है, तो क्वेरी को एनालाइज करो, पता करो कि भाई ये क्वेरी थोड़ा बहुत स्लो चल रही है, और देखो कि आप उस क्वेरी में आप जो डेटा फेच कर रहे हो, तो ज्यादातर आप कौन सा कॉलम यूज कर रहे हो डेटा फिल्टर करने के लिए, तो उस कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगा लो, और इंडेक्स लगाने के बाद वापस क्वेरी चला के देखो और देखो कि क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ गया या नहीं। बढ़ गया तो वेल एंड गुड, इंडेक्स को आप रखोगे। इंडेक्स लगाने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है तो इंडेक्स आप हटा दोगे, अननेसेसरी क्यों ओवरलोड डालने का डेटाबेस पे। अगर इंडेक्स बढ़ गया तो सॉरी परफॉर्मेंस बढ़ गया तो इंडेक्स को आप रखोगे, नहीं बढ़ा तो इंडेक्स निकालोगे और देखोगे और कुछ का तरीका है कि उस क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ाने का। तो अपन बस वही कर सकते हैं। और मेनली ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का काम किसका होता है, तो
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन लोगों का काम परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का होता है। डीबीए आपने सुना होगा, डीबीए का एक अलग सा प्रोफाइल होता है, अलग सा एक उनका टीम होता है। उनका काम क्या है, तो डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू मॉनिटर करते रहो, क्वेरी को ट्यून करो, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें डीबीएस करते हैं। तो मेनली एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर आप ज़्यादातर इंडेक्स पे काम नहीं करोगे, बट यस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स होता क्या है एग्जैक्टली और इंडेक्स अगर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करते हैं, इंडेक्स को निकालना है तो कैसे निकालना है। इतनी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो दैट्स इनफ एक्चुअली। तो आया समझ में इंडेक्स क्या है, क्या करता है? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. सो मेनली इंडेक्स जो है इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, तो एटलीस्ट आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इंडेक्स एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है। So things to be taken care while creating an index. तो इंडेक्स कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। सो लेफ्ट साइड में है यू शुड क्रिएट एन इंडेक्स इफ, अगर आपकी ये इतने सारे क्राइटेरियाज मैच करते हैं तो इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड है। एंड राइट साइड में है यू शुड नॉट क्रिएट एन इंडेक्स इफ दीज आर द केसेस। सो पहले देखते हैं इंडेक्स कब लगाना चाहिए। ए कॉलम कंटेन्स वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, तो जो कॉलम है टेबल के अंदर उसके अंदर जो डेटा है वो रेंज वाला डेटा है, वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज है उसके अंदर। देन इट इज रिकमेंडेड टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन दैट कॉलम। ए कॉलम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ नल वैल्यूज, तो उस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज भी काफी ज्यादा है तो उस टाइम पे भी इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड है। तो इंडेक्स लगाया तो क्या करेगा कि वो नल वैल्यूज जो है, कौन कौन से रिकॉर्ड के लिए नल वैल्यूज है, उसका एक अलग सा एल्गोरिदम चला के वो इंफॉर्मेशन उसके पास मेंटेन करके रखा कि भाई हाँ इतने सारे नल वैल्यूज वाले रिकॉर्ड्स है और ये रिकॉर्ड्स हार्ड डिस्क के इस ब्लॉक पे है। वो इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखेगा ताकि जब भी आप क्वेरी चलाओगे और आप सिर्फ नॉट नल वाले वैल्यूज फेच करोगे या नल वैल्यूज फेच करोगे तो इंडेक्स को पता रहेगा कि एग्जैक्टली वो डेटा कहाँ पे, तो वो आपको सीधा डायरेक्टली वहां से फेच करके देगा। वन or more columns are frequently used together in a where clause or a join condition. तो ऐसा कोई कॉलम है या कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो ज्यादातर आप वेयर क्लॉज के अंदर डेटा फिल्टर करने के लिए यूज करते हो, तो उस कॉलम पे इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड है। ऐसा कोई डेट का कॉलम है या फिर और कोई दूसरा कॉलम है जो ज्यादातर आप डेटा फिल्टर करने के लिए यूज करते हो, तो उस कॉलम पे इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है द टेबल इज लार्ज एंड मोस्ट क्वेरीज आर एक्सपेक्टेड टू रिट्राइव लेस देन 2 to 4% ऑफ द रोज। तो टेबल का साइज आपका काफी बड़ा है, मान लो लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है उस टेबल में, और जो ज्यादातर क्वेरीज आप चला रहे हो डेटा फेच करने के लिए, सिलेक्ट के क्वेरीज, ज्यादातर क्वेरीज उस टेबल में से 2 से 4% का डेटा ही आप फेच कर रहे हो क्वेरी के थ्रू, यानी कि काफी सारा फिल्टरेशन कर रहे हो। कम डेटा फिल्टर कर रहे हो यानी कि काफी सारा डेटा फिल्टर हो रहा है। तो जितना ज्यादा डेटा फिल्टर होगा उतना डेटाबेस को स्कैन करना पड़ेगा डेटा, तो ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तो उस केस में इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड है। सो दीज आर दी सम केसेस वेयर इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड है। देन कब नहीं लगाना चाहिए, व्हेन द टेबल इज स्मॉल, तो टेबल का साइज छोटा है तो वैसे भी आपकी क्वेरी फिर फास्ट ही चलेगी,
तो उस केस में इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। The columns are not often used as a condition in the query. तो जो कॉलम जो ज्यादातर SQL के सिलेक्ट क्वेरी के अंदर यूज नहीं होते हैं डेटा फिल्टर करने के लिए, तो जो कॉलम डेटा फिल्टर करने के लिए यूज नहीं होता उस कॉलम पे इंडेक्स लगा के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी फिर इंडेक्स काम में नहीं आएगा। इंडेक्स काम में कब आता है? जब आप उसी कॉलम के ऊपर डेटा फिल्टर करते हो तब। अगर कोई कॉलम है जो ज्यादातर आप वेयर क्लॉज के अंदर डेटा फिल्टर करने के लिए यूज नहीं करते, तो इंडेक्स लगा के भी कुछ मतलब नहीं बनेगा। देन नेक्स्ट है, मोस्ट क्वेरीज आर एक्सपेक्टेड टू रिट्राइव मोर देन 2 to 4% ऑफ द रोज इन द टेबल। तो ज्यादातर क्वेरी जो है डेटा फेच करने वाले 2 या 4% से ज्यादा डेटा फेच कर रहा है, यानी कि ज्यादा डेटा फेच हो रहा है। तो ज्यादा डेटा फेच हो रहा है यानी कि फिल्टरेशन कम हो रहा है, स्कैनिंग कम हो रहा है, तो उस केस में इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड नहीं है। देन नेक्स्ट है, द टेबल इज अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। वो टेबल फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहता है, यानी कि उस टेबल के अंदर बार बार डेटा इंसर्ट होते रहता है या फिर एग्जिस्टिंग डेटा कंटिन्यूसली मॉडिफाई होते रहता है, तो उस केस में भी इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि टेबल अगर कंटिन्यूसली अपडेट होते रहेगा तो इंडेक्स को भी उसका लॉजिक कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ डेटा मॉडिफाई होता है तो अकॉर्डिंगली इंडेक्स को भी उसका लॉजिक मॉडिफाई करना होगा कि भाई हाँ, ये डेटा जो था पहले इस क्राइटेरिया में फिट होता था, अभी वो मॉडिफाई हो चुका है तो अभी वो दूसरे क्राइटेरिया में फिट होता है, तो अकॉर्डिंगली उसका एल्गोरिथम भी फिर चलेगा और वो खुद की इंफॉर्मेशन भी अपडेट करेगा, तो अननेसेसरीली फिर डेटाबेस पे लोड आ जाता है, तो उस केस में भी इंडेक्स लगाना रिकमेंडेड नहीं है। सो क्लियर है कब इंडेक्स लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए? Yes, sir. और इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि क्या क्वेरी लिखनी होगी जब आपको इंडेक्स क्रिएट करना है। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, तो इंडेक्स के भी अलग अलग टाइप्स है। सिंगल कॉलम इंडेक्स, a single column index is created based on only one table column। तो सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाया तो उसको बोला जाएगा सिंगल कॉलम इंडेक्स। नेक्स्ट है यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्सेस आर used not only for performance but also for data integrity। A unique index does not allow any duplicate values to be inserted into the table। तो यूनिक इंडेक्स जब आप बनाते हो तो उस कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर पाते। देन नेक्स्ट है कंपोजिट इंडेक्सेस। ए कंपोजिट इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑन 2 or more columns of a table। तो 2 या 2 से ज्यादा कॉलम का मिला के अगर आपने एक इंडेक्स बनाया तो उसको बोला जाएगा कंपोजिट इंडेक्स। सेम लाइक प्राइमरी की, तो प्राइमरी की भी हम 2 या 2 से ज्यादा कॉलम का मिला के बना सकते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा कॉलम का मिला के जब प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको बोला जाता है कंपोजिट की। तो सेम अप्लाइज हियर एज वेल, 2 या 2 से ज्यादा कॉलम का इंडेक्स बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा कंपोजिट इंडेक्स। नेक्स्ट टाइप है क्लस्टर्ड इंडेक्सेस। ए क्लस्टर इंडेक्स is a type of index in which table records are physically reordered to match the index। तो अगर क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाते हो कॉलम पे तो इंडेक्स अपना खुद का एल्गोरिदम चलाएगा और एल्गोरिदम चलाने के बाद वो एक अपनी खुद की ऑर्डर बनाएगा रिकॉर्ड्स की उस टेबल में से। और क्या करेगा, पहले जो टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ था उसको वो
रीशफल करेगा पूरा। तो मान लो पहले रिकॉर्ड नंबर 1 इंसर्ट हुआ था, बट इंडेक्स ने एल्गोरिदम चलाया। अभी रिकॉर्ड नंबर 1 जो है उसकी पोजीशन रिकॉर्ड नंबर 10 पे होनी चाहिए, रिकॉर्ड नंबर 1 पे कोई अलग सा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो रिकॉर्ड नंबर 1 पहले अगर मान लो हार्ड डिस्क के 1 नंबर ब्लॉक पे स्टोर हुआ था, इंडेक्स क्या करेगा, उसको उठा के उस हार्ड डिस्क के लोकेशन पे उसको उठा के दूसरी लोकेशन पे डालेगा जहां पे उसको एक्चुअली होना चाहिए। तो फिजिकली डेटा रीशफल होता है जब आप क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाते हो तब। तो पहले हार्ड डिस्क पे अगर डेटा इन टेबल इंसर्ट करते टाइम किसी लोकेशन पे हुआ होगा, इंडेक्स क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाने के बाद इंडेक्स ने उसका खुद का ऑर्डर बनाएगा। तो उस ऑर्डर पे मैच करने के लिए डेटा हार्ड डिस्क से एक लोकेशन से उठा के उसको वो दूसरी लोकेशन पे डालेगा। तो फिजिकली डेटा रीऑर्डर हो जाएगा अगर क्लस्टर्ड इंडेक्स आप लगाते हो तब। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होता है? तो ए नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स is a special type of index in which logical order of index does not match physical stored order of the rows on disk. तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या करेगा? सेम चीज करेगा, वो इंडेक्स लगाने के बाद एल्गोरिदम चलाएगा। एल्गोरिदम चलाने के बाद वो अपना खुद का ऑर्डर तैयार करेगा डेटा का। बट जो पहले डेटा हार्ड डिस्क पे इंसर्ट हुआ है टेबल का डेटा, तो उसको वो हिलाएगा नहीं, टच नहीं करेगा, अपना खुद का एक लॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करेगा और उसका मैपिंग करेगा तुम्हारे फिजिकल टेबल के रिकॉर्ड के साथ। तो मान लो कि इंडेक्स में जो रिकॉर्ड नंबर 1 पोजीशन पे जो रिकॉर्ड आने वाला है वो एक्चुअली टेबल में वो रिकॉर्ड 100 नंबर वाले पोजीशन पे है, और उस सेम और वो हार्ड डिस्क के किसी 100 नंबर वाले लोकेशन पे स्टोर्ड हो चुका है। तो वो क्या करेगा? मैपिंग करेगा 100 नंबर वाला रिकॉर्ड और इंडेक्स का जो लॉजिकल ऑर्डर है उसका 1 नंबर वाला रिकॉर्ड, उसका मैपिंग करके रखेगा कि मेरा जो 1 नंबर वाला रिकॉर्ड है वो हार्ड डिस्क के 100 नंबर वाले ब्लॉक पे है। सेम मेरा जो 2 नंबर का रिकॉर्ड है वो हार्ड डिस्क के लिए से 34 नंबर वाले ब्लॉक पे है। तो ऐसा वो मैपिंग करके रखता है ताकि जब क्वेरी चलेगी और सेम कॉलम डेटा फिल्टर करने के लिए यूज होगा जिसके ऊपर इंडेक्स लगाया है, तो फिर इंडेक्स आएगा, उसको पता चलेगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये वाला रिकॉर्ड कौन से ब्लॉक पे है, तो सीधा वो उसी ब्लॉक पे जाएगा और वहां से डेटा आपको उठा के देगा। तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स जो फिजिकली डेटा पहले स्टोर होता है उसको टच नहीं करेगा, अपना खुद का एक लॉजिकल ऑर्डर बनाएगा और उसका मैपिंग वो फिजिकल ऑर्डर के साथ मैप करके रखेगा। So these are the few types of indexes available in SQL. Hello, sir. Yes, ma'am. Sir, clustered, non-clustered. असं सांगता का नाही समजत. So clustered index क्या हो रहा है? तो a clustered index is a type of index in which table records are physically reordered to match the index. तो हमेशा नॉर्मली क्या होता है? तो डेटाबेस में पहले टेबल बनेगा, टेबल बनाया आपने, टेबल बनने के बाद उस टेबल के अंदर आप डेटा इंसर्ट करते हो। तो पहले टेबल बनाया और आपने फिर उस टेबल के अंदर डेटा डाला। डेटा डालने के बाद डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, यानी कि डेटाबेस कहाँ पे होता है? तो वो डेटा एक्चुअली तुम्हारे हार्ड डिस्क पे ही स्टोर होगा ना सिस्टम के। तो हार्ड डिस्क पे किसी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के ब्लॉक पे वो डेटा स्टोर हो जाता है। तो टेबल बनाया, डेटा इंसर्ट भी किया आपने, और कुछ दिनों के बाद आपने उस टेबल के किसी कॉलम के ऊपर आपने इंडेक्स लगा दिया। और कौन सा इंडेक्स लगाया? तो क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाया। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स कैसे काम करता है? तो क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाने के बाद इंडेक्स हमेशा अपना खुद का एल्गोरिदम चलाएगा बैकएंड में, और एल्गोरिदम चलाने के बाद वो कुछ तो लॉजिक बनाता है कि भाई वो डेटा को एनालाइज करता है
और एनालाइज करने के बाद जिस कॉलम के ऊपर बेसिकली इंडेक्स लगाया है उस कॉलम के डेटा को एनालाइज करेगा। मान लो डेट कॉलम है कोई तो आपके टेबल में, और डेट कॉलम पे आपने इंडेक्स लेट से लगाया, तो पहले जो डेटा इंसर्ट हुआ था टेबल क्रिएट होने के बाद, तो ऐसे रैंडमली इंसर्ट हुआ था, डेट का कुछ ऐसा सीक्वेंस नहीं था। एम्प्लॉय का लेट से डेटा है और एम्प्लॉय के टेबल में डेट ऑफ ज्वाइनिंग करके कॉलम है, तो हर एक एम्प्लॉय ने कौन से तारीख पे कंपनी ज्वाइन की थी वो इंफॉर्मेशन है। और उस कॉलम पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम पे कोई सीक्वेंस नहीं है, आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया कि हाँ भाई पहले जनवरी मंथ के जो एम्प्लॉयज है पहले वही डेट एम्प्लॉयज इंसर्ट करेंगे, फिर फरवरी में जिसने ज्वाइन किया है वही एम्प्लॉयज इंसर्ट करेंगे। ऐसा कुछ लॉजिक आपने इंसर्ट करते टाइम डेटा पे लगाया नहीं था। तो आपके पास आया डेटा, आपने जस्ट डायरेक्टली इंसर्ट किया। तो पहला जो रिकॉर्ड है उसके अंदर लेट से उसका ज्वाइनिंग जो है लेट से अगस्त 2019 का है। नेक्स्ट सेकेंड रिकॉर्ड जो आया उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेट से जनवरी 2010 का है। तो मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम पे, और आपने डेटा इंसर्ट किया है। नाउ आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे इंडेक्स लगाया, क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स ने उसने बैकएंड पे एल्गोरिदम चलाया, और अभी क्या करेगा वो एल्गोरिदम ने क्या लॉजिक दिया, तो हर एक ईयर का डेटा हम सेग्रीगेट करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेटा। तो 2022 में जितने भी रिकॉर्ड्स है जिन्होंने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है, 2022 वाले रिकॉर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे, एक जगह पे लाएंगे, और एक जगह पे किसी हार्ड डिस्क के एक लोकेशन पे उसको डालेंगे। 2018 में जितने भी लोगों ने कंपनी ज्वाइन की थी, तो जिस रिकॉर्ड के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ईयर 2018 है, तो उन सारे रिकॉर्ड को हम कंबाइन करके हार्ड डिस्क के एग्जैक्टली किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करेंगे। और ईयर के साथ फिर वो मंथ वाइज भी सेग्रीगेट करना चाहता है। तो 2018 में जनवरी मंथ में जितने भी एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया था उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को मैं कंबाइन करूंगा और हार्ड डिस्क के किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही स्टोर करूंगा। तो अगर उसने ऐसा लॉजिक बनाया, तो वो जो एक्चुअल डेटा स्टोर हुआ था वो पूरा डेटा वो हार्ड डिस्क का रीशफल हो जाएगा, हर एक रिकॉर्ड की ब्लॉक पोजीशन चेंज हो जाएगी इंडेक्स के लॉजिक के हिसाब से। फिर इंडेक्स को जहां वो रिकॉर्ड रखना है हार्ड डिस्क के वो स्पेसिफिक ब्लॉक पे वो उठा के रिकॉर्ड को रख देता है। पहले मान लो ब्लॉक नंबर 1 पे एक रिकॉर्ड था, बट इंडेक्स के लॉजिक के हिसाब से उस रिकॉर्ड को ब्लॉक नंबर 10 पे होना चाहिए। तो हार्ड डिस्क के ब्लॉक नंबर 1 पे जो रिकॉर्ड था उसको उठा के वो ब्लॉक नंबर 10 पे डालेगा, तो ऑर्डर जो है रीशफल हो जाएगा। जैसे कि क्लास में भी मान लो आप क्लासरूम में एंटर करते हो, क्लास में जा रहे हो आप, मतलब कॉलेज में या स्कूल में क्लास में जाते हो, और पहले आप जाके बेंच नंबर 1 पे जाके बैठते हो। बाद में टीचर आते हैं और टीचर बोलते हैं कि भाई तू यहाँ पे मत बैठ, तू थोड़ा पीछे जा। तो आपको टीचर क्या करेंगे, उठाएंगे बेंच नंबर 1 से और बेंच नंबर 5 पे जाके बैठने को बोलेंगे। तो आपका ऑर्डर यहाँ पे चेंज होगा। पहले आपका डेटा जो था बेंच नंबर 1 पे था, तो बेंच नंबर 1 पे आके आप बैठे थे, बट इंडेक्स आया, इंडेक्स लगाया, इंडेक्स ने कुछ उसका एल्गोरिदम चलाया। मान लो इंडेक्स एज ए टीचर, और टीचर ने बोला कि आप भाई तू 1 नंबर बेंच पे मत बैठ, तू जाके 5 नंबर बेंच पे बैठ जा। तो आपकी पोजीशन अभी चेंज होगी, आप 1 नंबर बेंच से उठ के 5 नंबर वाले बेंच पे जाते हो। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, क्लस्टर इंडेक्स लगाते हो तो सेम हो रहा है, ऑर्डर जो है रीशफल हो रहा है। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या हो रहा है, तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स में जो आपका एक्चुअल ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप मान लो शुरुआत में 1 नंबर बेंच पे बैठे थे, तो आप वहीं पे भी हो, हार्ड डिस्क के उसी लोकेशन पे ही है डेटा, बट टीचर ने एक उनके माइंड में एक ऑर्डर बना के रखा है कि हाँ भाई 1 नंबर पे बेंच पे जो बंदा है वो एक्चुअल उसका ऑर्डर कहाँ पे होना चाहिए, तो 5 नंबर वाले बेंच पे होना चाहिए। तो टीचर ने उसके माइंड में लॉजिक बना के रखा है कि 1 नंबर पे जो बेंच पे बैठा हुआ बंदा है उसका एक्चुअल ऑर्डर जो है 5 नंबर वाले बेंच पे है। तो ऐसा उन्होंने टीचर ने माइंड में मैपिंग करके रखा है।
तो सेम नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स करता है। फिजिकल ऑर्डर जो है हार्ड डिस्क में जो डेटा इंसर्ट हुआ था वो सेम ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट लॉजिकल ऑर्डर एक बनाएगा और लॉजिकल ऑर्डर का और फिजिकल ऑर्डर का मैपिंग करके रखेगा। समझे? Yes, sir. Thank you. सो टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस क्लियर है सबको? Sir, yes, sir. Okay, good. So this is all about index. Let's move further. नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप्स। तो SQL के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप मतलब क्या है देख लेते हैं। So SQL data types is an attribute that specifies the type of data of any object. तो डेटा टाइप यानी कि एक एट्रीब्यूट होता है जिससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा है, वेदर न्यूमेरिकल डेटा है या कैरेक्टर्स है या डेट है। तो किस टाइप का डेटा आपको वहां पे अलाउ करना है ये कौन डिसाइड करता है? तो डेटा टाइप डिसाइड करता है। ईच कॉलम, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन हैज ए रिलेटेड डेटा टाइप इन SQL। तो हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप होता है और उसी टाइप का डेटा ही उस कॉलम के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। You can use these data types while creating your table. तो जब आप टेबल बनाते हो नया, उसी टाइम पे ही आप हर एक कॉलम के ऊपर डेटा टाइप लगाते हो। You can choose a data type for a table column based on your requirement. तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेटा टाइप लगाते हो। तो नेम है, नेम नाम का कॉलम है, तो नेम के अंदर आपको सिर्फ स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स अलाउड करने हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसका डेटा टाइप लगाओगे। फोन नंबर कॉलम के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा अलाउड करना है, तो अकॉर्डिंगली फोन नंबर कॉलम के ऊपर आप डेटा टाइप अप्लाई करोगे। डेट कॉलम के लिए सिर्फ डेट ही अलाउड करना है, तो डेट का जो भी डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आप उस कॉलम के ऊपर लगाओगे। तो डेटा टाइप डिसाइड करता है कि उस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा जाएगा। तो अलग अलग डेटा टाइप्स है अवेलेबल SQL के अंदर। सो देखते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स है। तो डेटा टाइप्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डाला है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, न्यूमेरिकल के अंदर तुमको आते हैं बिट, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल, न्यूमेरिक, फ्लोट, रियल, ऑल दीज आर न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। तो ज्यादातर इंटीजर और फ्लोट यूज होते हैं। डेट और टाइम के लिए भी डेटा टाइप से अलग अलग, डेट है, टाइम है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प, ईयर, these are the data types which can be used to store the date or time type of data. कैरेक्टर और स्ट्रिंग अगर स्टोर करनी है तो char, varchar, text, all these are data types available. यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स स्टोर करने हैं तो nchar, ven, varchar, n, text. बाइनरी स्टोर करना है तो बाइनरी, var, बाइनरी, इमेज एंड मिससेलेनियस, यानी कि JSON डेटा स्टोर करना है, XML डेटा स्टोर करना है तो क्लॉब, ब्लॉब, XML, JSON, ये अलग अलग डेटा टाइप्स है। तो इसमें से ज्यादातर जो है न्यूमेरिकल में ज्यादातर यूज होंगे इंटीजर, फ्लोट। डेट टाइम में डेट टाइम यूज होते हैं ज्यादातर, और कैरेक्टर में कैर और वैरकैर। पहले तीन कैटेगरीज के डेटा ही रहता है ज्यादातर टेब डेटाबेस के अंदर।
बाकी ये यूनिकोड, बाइनरी, मिससेलेनियस नहीं होता ज़्यादातर, वेरी रेयरली आपको मिलेगा। ज़्यादातर डेटा जो होता है वो या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है या फिर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए अपने पास कैर वैरकैर है, और न्यूमेरिकल के लिए इंटीजर फ्लोट है, और थोड़ा बहुत डेट आता है तो डेट के लिए डेट टाइम वगैरह है। तो ये यही डेटा टाइप ज़्यादातर आपको मिलेंगे देखने को, बाकी डेटा टाइप तो वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होते। सो क्लियर है डेटा टाइप मतलब क्या और कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है एसक्यूएल के अंदर। कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। Yes, sir. So if I ask something, please do acknowledge. समझ में आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो नो बोलो, वापस रिपीट करेंगे। यस सर, समझ ले। सो डेटा टाइप्स हो गए। सो डेटा टाइप में कैर और वैरकैर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग अगर स्टोर करने हैं तो कैर और वैरकैर दो डेटा टाइप्स है अपने पास। तो दोनों का भी काम क्या है, तो कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग को स्टोर करना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कई बार पूछते हैं इंटरव्यू में, तो देखते हैं कि डिफरेंस क्या है कैर और वैरकैर के बीच में। कैर, it is an abbreviation for characters. Varchar, it is an abbreviation for variable characters. Char data type is used to store character strings of fixed length. Varchar data type is used to store character strings of variable length. Fixed length मतलब किसी कॉलम के अंदर हर एक रिकॉर्ड के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का डेटा ही इंसर्ट होने वाला है। तो मान लो एक कोई कॉलम है और टेबल के अंदर आप 100 रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हो, 100 के 100 रिकॉर्ड के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम में फिक्स लेंथ कैरेक्टर का ही डेटा जाने वाला है। ये आपको पता है तो आप क्या यूज करोगे, बट आपको नहीं पता है कि फिक्स लेंथ का नहीं है, मतलब पहले रिकॉर्ड के लिए 4 कैरेक्टर्स का डेटा जाने वाले, दूसरे रिकॉर्ड के लिए 10 कैरेक्टर का आ सकता है, तीसरे के लिए 7 कैरेक्टर का आ सकता है, मतलब वेरी हो रहा है, आपको पता नहीं कि फिक्स लेंथ नहीं है, तो उस टाइम पे यूज करोगे varchar. Char uses static memory location, varchar uses dynamic memory location. स्टैटिक यानी कि फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन पहले से डिसाइड करके रखता है कि हाँ भाई इसी लोकेशन पे मैं रिजर्व करके रखेगा बेसिकली पहले एडवांस में ही। डायनेमिक मतलब जैसे डेटा आएगा वैसे वो अकॉर्डिंगली मेमोरी लोकेशन जहाँ पे भी जो अवेलेबल मिलता है वहां पे वो स्टोर करके डालेगा। Char takes 1 byte space for each character. Varchar take 1 byte for each character along with some extra bytes to store the length information. तो varchar थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेगा डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि varchar को एडवांस में पता नहीं होता कि हर एक कैरेक्टर का लेंथ कितना है। वो जैसे जैसे डेटा आएगा तो वैसे कैलकुलेट करेगा लेंथ। तो डेटा स्टोर करने के लिए एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट लगता है, बट लेंथ की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा स्पेस वो लेगा। बट कैर में अपने को एडवांस में ही पता रहता है कि भाई लेंथ क्या आने वाला है। आपको अगर फिक्स लेंथ पता है कि क्या है तो वैसे आप पहले ही एडवांस में आप बोल देते हो कि हाँ भाई इतने लेंथ का डेटा मेरे पास आने वाला है तो इतना मेमोरी तू पहले से स्टोर करके रख। तो उस केस में कैर को हर टाइम पे डेटा जब आएगा उस टाइम पे लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही उसको पता होता है कि किस लेंथ का डेटा आने वाला है, तो इसकी वजह से वो लेंथ स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा बाइट्स नहीं लेता।
नेक्स्ट है वी कैन यूज char डेटा टाइप व्हेन वी नो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड varchar we can use it when we are not sure of the length of the string. तो एडवांस में ही अगर आपको पता है कि कितने लेंथ का डेटा आने वाला है तो उस टाइम पे क्या आप डेटा टाइप यूज कर सकते हो. बट नहीं पता है, जैसे कि नेम का कॉलम है तो हर एक का नेम अलग अलग होता है, तो अलग अलग नेम है तो अलग अलग लेंथ का डेटा आ सकता है. तो हमें एडवांस में पता नहीं है एडवांस कि कितने लेंथ का डेटा आ सकता है, तो उस टाइम पे varchar यूज करेंगे. बट जैसे मेल कॉलम है, सॉरी नॉट मेल, जेंडर कॉलम, तो जेंडर में आपको नॉर्मली है या तो हम मेल के लिए m इंसर्ट करते हैं और फीमेल के लिए f इंसर्ट करते हैं. तो आपको एडवांस में पता है कि जेंडर कॉलम में सिर्फ एक कैरेक्टर का डेटा ही जाएगा, या तो m जाएगा या फिर f जाएगा, दोनों में से एक ही जाएगा. ये आपको एडवांस में पता है. तो जेंडर कॉलम के लिए आप char डेटा टाइप यूज कर सकते हो, बट नेम कॉलम के लिए आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि हर एक पर्सन का नेम अलग अलग हो सकता है, तो उसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती है. तो नेम के लिए आप यूज करोगे varchar. Char data type can be used when we expect the data values in a column to be of same length. Varchar data type can be used when we expect the data values in a column to be of variable length. तो as I said, जेंडर में फिक्स लेंथ आपको पता है कितने कैरेक्टर्स का आने वाला है, तो char यूज करो. varchar जैसे कि नेम कॉलम, नेम में हर एक का नेम अलग अलग है, तो उस केस में varchar यूज करो. char can lead to memory wastage. varchar manages memory efficiently. memory wastage कैसे हो सकता है कि आपने एडवांस में char कैरेक्टर को बोल दिया कि मेरे पास 10 कैरेक्टर्स का डेटा आने वाला है, तो 10 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जितना मेमोरी लगता है एडवांस में ही char क्या करेगा, उतनी मेमोरी वो रिजर्व करके रखेगा, ऑक्यूपाई करके रखेगा. बट एक्चुअल में डेटा आया तुम्हारे पास 5 कैरेक्टर का ही, बट उसने तो मेमोरी 10 कैरेक्टर को जितनी लगती थी उतनी रिजर्व करके रखी थी, तो एक्स्ट्रा 5 कैरेक्टर की मेमोरी आपकी वेस्ट गई. बट varchar क्या करता है, एडवांस में मेमोरी स्टोर करके नहीं रखता, ऑक्यूपाई नहीं करके रखता. जैसे जैसे डेटा आता है डेटा की लेंथ वो कैलकुलेट करेगा और उसको जितना मेमोरी लगता है उतना ही मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा. तो इसकी वजह से यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज होता नहीं. char is faster than varchar. varchar is slower than char. char faster क्यों है, क्योंकि एडवांस में ही हम char को बोलते हैं कि मुझे इतने कैरेक्टर्स का डेटा आने वाला है, तो इतने कैरेक्टर्स का डेटा के लिए जितना मेमोरी लगता है तो पहले से ब्लॉक करके रख. तो वो डेटा जब एक्चुअल में डेटा आएगा तो उस टाइम पे उसको मेमोरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, तो वो तुरंत डेटा स्टोर करके रख देता है. varchar को क्या करना पड़ता है कि हर टाइम पे जब डेटा आएगा तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करो और फिर उस लेंथ को कितना मेमोरी चाहिए वो कैलकुलेट करो. तो थोड़ा सा char के हिसाब से varchar का परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो है. So these are few differences between char and varchar. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. हॅलो सर. सर म्हणजे एक पॉइंट ह्याच्यामधला असा होता की varchar take 1 byte for each character along with some extra byte to store length information. म्हणजे ते स्टोर होताना 2 त्याचे फील्ड स्टोर होणार का? म्हणजे ऍक्च्युअल ते बाइट्स आणि त्याची लेंथ. तो बैकएंड में ये स्टोर कैसे करता है अपने को दिखता नहीं है,
बट इतना समझ लेने का है कि थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस ये लेता है, एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है। बट बैकएंड में वो कैसे स्टोर कर रहा है, कौन से फील्ड में लेंथ इंफॉर्मेशन है, कौन सी इसमें, ये अपने को कुछ दिखता नहीं। ओके सर। मतलब हम चेक नहीं कर सकते कि दो अलग अलग फील्ड में वो इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है क्या एक ही फील्ड में मेंटेन कर रहा है, ये हम देख नहीं पाते एक्चुअली। ओके सर। ये बैकएंड में होती है सारी चीजें। तो जो डेटाबेस इंजन है वो बैकएंड में ये सारी चीजें करता है। ओके सर, थैंक यू। All right, let's move further. नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो अलग अलग ऑपरेटर्स भी है एसक्यूएल के अंदर। तो देखते हैं ऑपरेटर्स कौन कौन से है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर्स मतलब क्या। सो एन ऑपरेटर is a reserved word or a character used primarily in an SQL statements where clause to perform operations such as comparison and arithmetic operations. तो डेटाबेस में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स है या कैरेक्टर्स है जिनको बोलेंगे हम ऑपरेटर्स, और उन रिजर्व्ड वर्ड्स का या कैरेक्टर्स का एक स्पेशल मीनिंग है, उनका सिर्फ उसी काम के लिए उनका यूज किया जाता है। आप दूसरे कामों के लिए वो रिजर्व्ड वर्ड्स या कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, तो उन रिजर्व्ड वर्ड्स को एक स्पेशल मीनिंग होता है, तो आप उसको दूसरे चीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे अपना इफ, एल्स, फॉर, ऑल दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स है, बराबर। इफ एल्स जो है कंडीशन लिखने के लिए आप इफ एल्स का ऑपरेटर्स का यूज करते हो। फॉर जो है फॉर लूप लिखने के लिए यूज होता है। तो आप इफ एल्स फॉर का दूसरे किसी कंडीशन, दूसरे क्राइटेरिया के लिए आप वो ऑपरेटर्स आप यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिजर्व्ड वर्ड्स है। तो सेम एसक्यूएल में भी कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स है जिनको बोला जाएगा ऑपरेटर्स। और मेनली वेयर क्लॉज में ऑपरेटर्स का यूज होता है, और वेयर क्लॉज हम यूज करते हैं डेटा फिल्टर करने के लिए। तो जब भी आपको डेटा फिल्टर करना है तो इन ऑपरेटर्स का यूज करके आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। सो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन in an SQL statement and to serve as conjunctions for multiple conditions in a statement. तो जब भी कंडीशन लगानी है डेटा फिल्टर करने के लिए तो इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। सो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स है। सो ऑपरेटर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, स्टार, फॉरवर्ड स्लैश और परसेंट, ये 5 ऑपरेटर्स है। प्लस यानी कि एडिशन, माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन, स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश यानी कि डिवीजन, परसेंट यानी कि मॉड्यूलस। तो ये आपको पता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर करना है तो इन ऑपरेटर्स का यूज करके आप कर सकते हो। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सिंपल, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, एसक्यूएल में भी है। नेक्स्ट कैटेगरी है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगेन सिंपल, ये भी हर एक लैंग्वेज में होता है। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। सो कुछ कंपैरिजन करना है, कुछ मैच करना है कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ मैच करता है या बड़ा है छोटा है, ऐसा कुछ मैच करना है, कंपैरिजन करना है बेसिकली। तो इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज आप कर सकते हो।
सो नेक्स्ट कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में इतने सारे आते हैं ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट है एंड। द एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल ऑफ द कंडीशंस सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस लगाने हैं आपको एसक्यूएल के स्टेटमेंट के अंदर, तो उस टाइम पे यूज होते हैं। तो पहला कंडीशन है कि मान लो ऐसे रिकॉर्ड फेच करो जिनका लोकेशन जो है इंडिया है, एक ये कंडीशन हो गया, और जिनका नाम जो है ए से स्टार्ट होता है। दो अलग अलग कंडीशन है, तो दो अलग अलग कंडीशंस आपको लगानी है, तो आपको दो कंडीशन के बीच में इनमें से कोई ना कोई ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, एंड और इन बिटवीन। तो एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी है तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो एंड ऑपरेटर यूज किया तो क्या होगा, तो एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल ऑफ द कंडीशंस सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू। तो एंड ऑपरेटर के बीच यूज करके जितने भी कंडीशंस लगाए हैं, सारे कंडीशंस पे मैच होने वाला डेटा अगर है तुम्हारे टेबल में तो वो आपको फेच करके देगा। अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो वो डेटा रिटर्न नहीं करता। और ऑपरेटर, the or operator returns true if any of the conditions separated by or are true। तो जितने भी कंडीशंस लगाए हैं और ऑपरेटर यूज करके, अगर उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो वो डेटा रिटर्न करके देगा। एंड के उल्टा, एंड में सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए तब डेटा रिटर्न होगा, और में एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो डेटा रिटर्न करेगा। इन ऑपरेटर, the in operator checks a value within a set of values separated by commas and retrieves the rows from the table which are matching। तो एक कॉलम है, एक कॉलम के अंदर आपको अलग अलग वैल्यूज मैच करने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए फाइंड एम्प्लॉयज टेबल का एग्जांपल लेते हैं, और एक क्राइटेरिया है कि फाइंड ऑल एम्प्लॉयज whose city is either पुणे और मुंबई और बेंगलोर। तो पुणे में रहने वाले एम्प्लॉयज, मुंबई में रहने वाले एम्प्लॉयज या बेंगलोर में रहने वाले एम्प्लॉयज, इन तीन सिटी में रहने वाले एम्प्लॉयज आपको चेक करने हैं। तो उस केस में इन ऑपरेटर का यूज करके आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है फेच कर सकते हो। नेक्स्ट है बिटवीन ऑपरेटर। The between operator filters your query to only return results that fit a specified range। तो रेंज के बेसिस पे डेटा अगर फिल्टर करना है तो आप बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए सेम अगर एम्प्लॉयज टेबल का एग्जांपल लेते हैं, और एम्प्लॉयज टेबल में मान लो तुम्हारे पास सैलरी नाम का एक कॉलम है, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है वहां पे सैलरी की इंफॉर्मेशन है। तो आपका रिक्वायरमेंट है कि फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज बिटवीन 5,000 एंड 10,000। तो 5,000 से लेके 10,000 इसके बीच में जिस किसी का सैलरी आता है, ऐसे सारे एम्प्लॉयज मुझे फेच करके देखने हैं। तो उस टाइम पे आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके आपको जो डेटा चाहिए फेच कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। The like operator searches for a specified pattern in a column। तो किसी पैटर्न को आपको मैच कराना है तो लाइक ऑपरेटर यूज करते हो। पैटर्न यानी कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है सर्च करने के लिए, बट थोड़ा बहुत कुछ मालूम है, उस बेसिस पे आपको डेटा फेच करना है।
एग्जाम्पल के लिए मान लो फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज whose name starts with letter A. तो A से जिस किसी एम्प्लॉय का नाम चालू होता है, ऐसे सारे एम्प्लॉयज ढूंढो। तो A से स्टार्ट होने वाले काफी सारे नेम्स हो सकते हैं। अजय हो सकता है, अमित हो सकता है, अर्चना हो सकता है, तो इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है सर्च करने की, क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, काफी सारे अकरेंसेस हो सकते हैं। तो ये एक पैटर्न हो गया कि ऐसे नाम फेच करो जिनका जो स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर है वो ए है। तो ऐसा कुछ पैटर्न लिखना है तो आप लाइक ऑपरेटर यूज करके पैटर्न लिख सकते हो और पैटर्न को मैच होने वाला डेटा फिर क्वेरी आपको फेच करके देगा। तो ये पैटर्न कैसे लिखते हैं ये हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो उस टाइम पे देख लेते हैं कि कैसे पैटर्न लिखना है, क्या करना है। देन नेक्स्ट ऑपरेटर है इज नल। The is null operator is used to filter results with a value of null. तो अगर आपको कोई कॉलम में से सिर्फ नल वाले वैल्यूज जो है वही फेच करने हैं तो is null ऑपरेटर का यूज करके आप फेच कर सकते हो। तो कोई एक कॉलम है, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड के लिए वैल्यू इंसर्ट हुआ है, कुछ रिकॉर्ड के लिए नहीं इंसर्ट हुआ था, नहीं इंसर्ट हुआ यानी कि वहां पे नल है। तो सिर्फ नल वाले रिकॉर्ड ही आपको देखने हैं कि कौन कौन से है। तो उस टाइम पे इज नल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स ऑल, एनी एंड एग्जिस्ट। ये नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स जो है ये यूज होते हैं सब क्वेरीज के साथ। तो सब क्वेरी करके एक कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल के अंदर। तो इन 3 ऑपरेटर का यूज सब क्वेरीज के साथ यूज होता है। तो सब क्वेरी क्या है ये हम देखने वाले हैं और उस टाइम पे इन ऑपरेटर्स का यूसेज भी हम देखेंगे। तो ऑल ऑपरेटर क्या करता है, द ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन। तो सब क्वेरी मतलब बेसिकली शॉर्ट में बोलता हूं क्या होता है, तो एक क्वेरी लिखी है आपने, उसी क्वेरी के अंदर आपने एक और क्वेरी लिख दी तो उसको बोला जाएगा सब क्वेरी। तो ऑल ऑपरेटर अगर यूज किया है सब क्वेरी के साथ आपने तो क्या करेगा वो, द ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन। तो आपने कुछ कंडीशन लिखी है और उस कंडीशन को आप ऑल ऑपरेटर के साथ लगा रहे हो तो ऑल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू करेगा। कब करेगा, तो सब क्वेरी ने जो भी वैल्यूज फेच की है सारे वैल्यूज के लिए अगर आपका कंडीशन मैच करता है तो ऑल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। एक भी वैल्यू के लिए कंडीशन मैच नहीं करता तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड देन एनी ऑपरेटर, the any operator returns true if any of the subquery values meet the specified condition। तो ये all के उल्टा है। एक कंडीशन है और वो आप वो लगा रहे हो एनी ऑपरेटर के साथ, तो सब क्वेरी ने जो वैल्यूज रिटर्न किए हैं उसको मैच करने के लिए। तो कंडीशन जो है अगर सब क्वेरी ने जितने भी वैल्यूज रिटर्न किए हैं, 1 रहने दो, 4 रहने दो, 10 रहने दो, तो अगर एक भी वैल्यू के लिए कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो एनी ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू। ऑल की केस में सारे वैल्यूज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना था, एनी के केस में एक भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हुआ तो भी चलेगा, वो रिटर्न करेगा ट्रू। तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर एज एंड और। तो एंड ऑपरेटर भी क्या करता था, तो जितने भी कंडीशंस आपने एंड ऑपरेटर के साथ लगाए सारे कंडीशन मैच हुए तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। बट और क्या करता था, तो जितने भी कंडीशन लगाए उसमें से एक भी कंडीशन के लिए आपका क्राइटेरिया मैच हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करता था।
So same goes with all and any as well. Then है next operator exists. The exist operator is used to filter data by looking for the presence of any record in a subquery. तो कोई एक डेटा है, वैल्यू है, वो वैल्यू आपको देखनी है कि सब क्वेरी के रिजल्ट में भी है या नहीं। तो पेरेंट क्वेरी का वैल्यू एग्जिस्ट करता है सब क्वेरी के अंदर, ये आपको देखना है कि करता है या नहीं। तो उसके लिए आप यूज करते हो एग्जिस्ट ऑपरेटर। सो व्हेन वी प्रैक्टिकली डू द क्वेरीज ऑन सब क्वेरीज, तो विल यूज ऑल दीज ऑपरेटर्स, एंड उस टाइम पे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, not operator. The not operator returns results if the condition or conditions are not true. तो not is a negation operator, वो रिजल्ट को उल्टा करेगा। तो not operator हम लगाते हैं इन सारे ऑपरेटर के साथ, तो एंड के साथ, और के साथ, नॉट, इन के साथ, इन सब के साथ आप नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो वो क्या करता है, रिजल्ट को उल्टा कर देता है। तो मान लो इन ऑपरेटर है, आप ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढ रहे थे कि जो रहने वाले हैं पुणे, मुंबई या बेंगलोर सिटी में, तो वो इन ऑपरेटर आपको मैच करके देता था। नॉट इन करोगे तो क्या करेगा, ऐसे एम्प्लॉय ढूंढ के देगा आपको वो जो नहीं रहते पुणे, मुंबई और बेंगलोर में। तो पुणे, मुंबई और बेंगलोर को छोड़ के बाकी सिटीज के वे रिकॉर्ड जो है वो फेच करके देगा, अगर आप यूज करते हो नॉट इन। नॉट बिटवीन करते हो, जैसे कि सैलरी नॉट बिटवीन 5,000 टू 10,000, तो 5,000 से लेके 10,000 के रेंज, ये जो रेंज है, इस रेंज को छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू है सैलरी कॉलम के लिए, तो वो वाला रिकॉर्ड वो आपको फेच करके देगा। जैसे कि 5,000 के पहले जो आते हैं 4,000, 2,000, 3,000 और भी जितने भी सारे वैल्यूज है, उसके अंदर किसी का सैलरी है, या 10,000 के आगे वाला सैलरी 11,000, 15,000, 20,000 किसी का सैलरी है, तो वो आपको फेच करके देगा अगर आप यूज करते हो नॉट बिटवीन। नॉट लाइक यूज करोगे तो लाइक में हमने एग्जांपल देखा था कि फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विथ लेटर ए। नॉट लाइक करोगे तो लेटर ए से जिसका नाम चालू नहीं होता, ऐसे एम्प्लॉयज वो फेच करके देगा। यानी कि लेटर ए को छोड़ के जो बाकी लेटर्स होते हैं बी, सी, डी, ई, एफ, तो इससे अगर कोई एम्प्लॉय का नाम स्टार्ट होता है तो वो वाले रिकॉर्ड्स आपको फेच करके देगा। तो नॉट इज बेसिकली नेगेशन ऑपरेटर। सो नॉट बेसिकली रिजल्ट को निगेट करता है। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर है सबको ऑपरेटर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हर एक ऑपरेटर हम प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे, क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी के अंदर ये ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे, ताकि हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हर एक ऑपरेटर एग्जैक्टली कैसे काम करता है। So that's all from my side for today's session. हेलो सर। हाँ जी, हाँ, एग्जिट का बता दें। तो एग्जिट एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है बेसिकली हम यूज करते हैं कि पेरेंट क्वेरी, तो ये नॉर्मली यूज होता है सब क्वेरीज के साथ। और किस केस में यूज करते हैं, तो कोई एक पेरेंट क्वेरी का रिकॉर्ड है या वैल्यू है, वो वैल्यू हमें चेक करना है कि सब क्वेरी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। सब क्वेरी ने जो रिजल्ट लाया है
उस रिजल्ट में पेरेंट क्वेरी का कोई डेटा या वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस, check the parent query value, check the existence of parent query value in this sub query result, कि सेम वैल्यू सब क्वेरी के रिजल्ट में है या नहीं। ये अगर आपको चेक करना है तो उस टाइम पे यूज होता है एग्जिस्ट ऑपरेटर। थैंक यू। तो जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और ऑल एनी एग्जिस्ट ये वैसे भी ज्यादा यूज नहीं होते ये, क्योंकि इनका यूसेज जो है लिमिटेड है, सब क्वेरीज के साथ ही यूज होता है। तो जब आप सब क्वेरीज लिखेंगे और सब क्वेरीज के लिखते टाइम भी अगर कुछ ऐसा कंडीशन आता है कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता है कि आपको ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैच करना है, तो उसी केस में ही ये ऑपरेटर यूज होते हैं, ऑल एनी एंड एग्जिस्ट। बाकी केस में तो नहीं यूज होते, बट बाकी ऑपरेटर्स एंड और इन बिटवीन लाइक इज नल ये यूज होते काफी, ये तो हमेशा यूज होते ही रहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेरी भी लिखते हो तो उस टाइम पे भी आपको कोई कंडीशन है तो नॉर्मली इसी ऑपरेटर का यूज करके ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता है इनमें से कोई ना कोई, तो ये बाकी ऑपरेटर ज्यादातर यूज होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स अभी हम जितने भी हमने एसक्यूएल के कमांड्स देखे, डेटा टाइप्स देखे, ऑपरेटर्स देखे, ये सारे प्रैक्टिकली चला के देखेंगे। हर एक का सिंटैक्स देखते हैं कि हर एक कमांड अगर आपको चलानी है तो क्या सिंटैक्स है, तो सारे कमांड चला के देखेंगे। सारे कमांड चला के फिर कमांड के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स का यूज भी करके देखेंगे, डेटा टाइप्स का यूज कैसे करते हैं देखेंगे, कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज मेक श्योर यू कनेक्ट थ्रू योर सिस्टम, नॉट फ्रॉम द मोबाइल, क्योंकि हमें ये प्रैक्टिकली करके देखना है। मोबाइल पे तो आप क्वेरी नहीं लिख सकते, मोबाइल के ऊपर के आप डेटाबेस इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो मेक श्योर प्लीज यू कनेक्ट थ्रू योर सिस्टम, जो भी सिस्टम है आपके पास, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके थ्रू कनेक्ट करना। तो नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले हम डेटाबेस इंस्टॉल कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो डेटाबेस आपके हर एक सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले तो डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हर एक कमांड चला के देखेंगे। तो बेसिकली लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है उसके थ्रू आप सेशन अटेंड कीजिएगा, ताकि आप आपकी एंड से भी उसी टाइम पे चला के देख पाओगे। ठीक है, यस सर। यस सर। Yes, sir. all right, and anybody would like to ask anything? नो सर। No, sir. Okay, then I'll stop the recording here.